Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. This lecture is from the subject of Human Anatomy, Semester 1 students, and it's for all technologies. My name is Dr. Abdul Majid Khan, and I am lecturer at Ghazali Institute of Medical Sciences. Along with this, I am also working as a hospital pharmacist at Combined Military Hospital, Peshawar. Today we will discuss about the anatomy of the small intestine. Small intestine is basically one of the most important part of the GIT, that is the gastrointestinal tract. Intestine is basically a part of the gastrointestinal tract that helps in the transportation and absorption. More specifically, it helps in the absorption of the nutrient, the absorption of the food. So small intestine is the most important for your exam point of view and for different purposes as well. So let's go for further its study. Small intestine, this is just shown in the small intestine part. Look at this diagram, it's the more close view of this small intestine. All these three parts are present together: the stomach, small intestine, and the large intestine. This is the end of the stomach. From there the small intestine is started, and this is all the small intestine, and from there the small intestine joins the large intestine, and this is all the large intestine is, and this is the last part of the abdominal alimentary canal. The intestine, which is the longest part of the digestive tube, is divided into two parts: the small intestine and the large intestine. Digestive tube is the tube that starts from mouth to the anal canal, that is to the rectum. From mouth to the large part of the large intestine is all included is the digestive tube. Digestive tube, gastrointestinal tube, or alimentary canal, all three are the similar terms. So intestine are the longest part of the digestive tube. Food has to be digested, metabolized, and stored for expulsion in the intestine. These three, the highlighted, the underline, are the three important functions of the intestine. It digests the food. What we get, that food is digested from, and that is when reached to the intestine, it is digested. It breaks down into small particle, and from this small particle the energy is absorbed, and this is metabolized. This is breakdown, and energy is absorbed to the blood, to the systemic circulation, that is metabolized. And the undigested food, that is what we can say the waste product, that are stored before the expulsion, stored for temporary, and then is expelled from the body. So these three are the important function of the small intestine. Small intestine, it extends from the pylorus to the ileocecal junction. The part of the GIT tract which extends from the pylorus to the ileocecal junction is called small intestine. Pylorus is the part of the stomach, and ileocecum, that is the junction, that is the part of the small to large intestine. It is about 6 meters long and approximately 2.5 to 3 centimeters in diameter. The surface area of the human small intestine mucosa, it averages 30 square meter. Look at this, 30 square meter. It is too much large area, and this large surface area is important for its function. Histology of the small intestine, the different type of the microcells and tissue that are present in the small intestine. The first one is villi. These are the transverse fold of the intestinal lining. जो intestinal cells हैं, intestine है, उसके जो lines हैं, उसका transverse fold है. Second is villi. These are the finger-like projection of the mucosa. जो intestinal lining का जो mucosa है
उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको हम कहेंगे वेलाई. Third is the lacteal. These are the terminal lymphatics in the villus. Villus is means singular villi. जो उसमें एंड पार्ट होगा जहाँ से ड्रेनेज होगी, तो जो एंड पार्ट होगा lymphatic का उसको हम कहेंगे lacteal. Intestinal glands. These are lined by the enteroendocrine gland. Entero means related to intestine. Endocrine gland, inside the gland. We know that we have two kind of gland, the endocrine and the exocrine. So enteroendocrine, that is present in the small intestine, the goblet cells and the stem cells. These are intestinal glands that is present in the small intestine. Duodenal glands, these are specific to just duodenum, and these are called burner glands that produces the mucus buffers. Okay, these are just specific to the duodenal glands, while these are present in all three parts. These are the region, the duodenal part that is attached to the pylorus end, that is the midsection, the jejunum, and that is the last portion, that is the ileum, and that is will be attached to the large intestine end. Small intestine is divided into three parts: the jejunum, duodenum, jejunum, and ileum. This is the part that end the stomach, so that is the pylorus end. So the first one is the jejunum, and then the mid part, look at this is the duodenum, and the middle part is the jejunum, and the last part is the ileum. So these three are the parts of small intestine. First one is the duodenum. Duodenum is a Greek word which means 12 fingers. So 12 finger, it is basically means 12 finger. Why it is 12 finger? Because of its position, जो internal microscopic structure है, that act like a finger like projection, that is what we call the villi. So उसी वजह से उसकी जो meaning है वो भी 12 finger जो word उसका दिया गया है. It is a short structure that is about 20 to 25 centimeter long. शॉर्ट स्ट्रक्चर है. यहाँ पे सिर्फ इसको कनेक्ट करेंगे फाइलोरस एंड से, और फिर यहाँ से ऑनवर्ड सारा लार्ज जो पार्ट है दैट इज द जेजुनम वो स्टार्ट हो जाता है. इट इज़ कंटिन्यूअस विद द स्टमक एंड शेप लाइक सी. ठीक है, स्टमक के साथ ये अटैच होता है, दैट्स वाई, एंड इट शेप उसकी जो बनती है फाइलोरस एंड के साथ, दैट इज सी. इट लाइज अबव द लेवल ऑफ द अम्बेलिकस, दैट इज ऑपोजिट टू द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लोमर वर्टेब्रा. फ्रंट साइड पे इसका जो पोजीशन है दैट इज अम्बेलिकस रीजन में होगा, और जो बैक साइड पे होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लोम्बर वर्टेब्रे जो होंगे उस पोजीशन में ये पाए जाते हैं. ठीक है. इट्स अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रियास. जो पेनक्रियास का जो हेड है वो ड्यूडिनम में होता है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ड्यूडिनम का हेड होगा. क्यों? बिकॉज के ड्यूडिनम में यहाँ पे पेंक्रियास का हेड होगा, बिकॉज के पेंक्रियास की जो सिक्रीशन है वो ड्यूडिनम में ही आती है. इट रिसीव द गैस्ट्रिक काइम, मीन्स के जो फूड हम लेते हैं स्टमक से पास होके, उससे फिर जो स्टार्ट में हम फूड जो लेते हैं जो माउथ में चला जाता है उसको हम कहेंगे बोलस, और फिर जब वो स्टमक से जाता है टू इंटेस्टाइन तो उसको हम कहेंगे काइम. सो इट रिसीव द गैस्ट्रिक काइम फ्रॉम द स्टमक. स्टमक से क्या करते हैं, जो फूड का जो पोर्शन है जिसको काइम कहते हैं वो रिसीव करते हैं, और उसकी वजह से उसके साथ क्या डाइजेस्टिव जूसेस भी रिसीव होती है फ्रॉम द पेनक्रियास. जो पेनक्रियास है वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, और सिमिलरली गॉल ब्लैडर है वो बाइल सिक्रीट करते हैं. कलेक्टिवली ये रिसीव करते हैं इन द ड्यूडिनम. डाइजेस्टिव एंजाइम, इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, बाइल एंड एमल्सिफाई द फैट्स इनटू माइसेल. जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू अमाइनो एसिड, जो फैट्स है बाइल है वो ब्रेक डाउन करेंगे इनटू लिपिड्स, और जो माइसेल्स है मीन स्मॉल जो ग्लोब्यूल्स बनते हैं उसमें वो डिवाइड करते हैं. दैट इज द ब्रेक डाउन डाइजेशन. एंड द ड्यूडिनम कंटेन द बर्नर ग्लैंड्स which produces the mucus like alkaline secretion that containing bicarbonate. यहाँ तक उसका क्या था, रिसीविंग है, और क्या क्या रिसीव करता है. फिर यहाँ पे वो इन एंजाइम्स की वजह से इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है.
फिर यहाँ तक गैस्ट्रिक जो जितने कंटेंट्स आए होते हैं उसमें क्या होगा, एसिड्स होंगे। तो उस एसिड को सिक्रीट करने न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक जो डुडेनम है उसमें ग्लैंड्स है जिसको हम कहेंगे बर्नर ग्लैंड, जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे। उस म्यूकस का बेसिकली काम क्या है कि वो जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करें। क्यों? बिकॉज ये बेसिक इस नेचर है, अल्कलाइन सिक्रीशन है जो कि बाइकार्बोनेट उसमें पाए जाते हैं। एंड बाइकार्बोनेट्स आर वी नो दैट कि वो क्या है, बेसिक है, अल्कलाइन है, तो वो एसिड की इफेक्ट को कम करेगा या ख़त्म करेगा। These secretion in combination with bicarbonate form pancreas neutralizes the stomach acid। ठीक है, यहाँ इसमें जितनी चीज़ें ऊपर से आई हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है, पेनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से एंड काइम, इन सारे में क्या होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट है उसमें एसिड होगा, तो उसको ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। सेकेंड इज द जेजुनम। जेजुनम इज द मिड सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इन बिटवीन पार्ट है ऑफ द जेजुनम बिटवीन द ड्यूडेनम एंड द इलियम, उसको हम कहेंगे जेजुनम। इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग एंड कंटेन द पैलाइज सर्कुलरस वेलाई दैट इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, ये 3 टाइप जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो पाए जाते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया इसका ज़्यादा हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, that is the sugar, amino acid and fatty acids, they are absorbed into the blood stream here। ड्यूडेनम में और स्टमक में जो ब्रेक डाउन हो जाती है वो रिसीव करते हैं जेजुनम, तो जेजुनम में वो क्या आएंगे, ब्लड में चले जाते हैं। ये शुगर, अमाइनो एसिड है या फैटी एसिड है, वो सारे एब्जॉर्ब होके ब्लड में चले जाते हैं। सस्पेंसरी मसल ऑफ द ड्यूडेनम मार्क्स द डिवीजन बिटवीन ड्यूडेनम एंड द जेजुनम। जो ड्यूडेनम है और जेजुनम के बीच में सस्पेंसरी मसल्स होंगे ऑफ ड्यूडेनम से अटैच होते हैं, वो डिवाइड करेंगे कि यहाँ से ऑनवर्ड ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, यहाँ से जेजुनम है। लास्ट वन इज द इलियम। इट इज़ द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 3 मीटर लॉन्ग एंड कंटेन विलाई सिमिलर टू द जेजुनम। ठीक है, इसमें विलाई होती हैं सिमिलर टू जेजुनम बट थोड़े से ज़्यादा होंगे। इट एब्जॉर्ब मेनली विटामिन B12 एंड बाइल एसिड। एलियम में विटामिन B12 मेनली वो एब्जॉर्ब होती है और बाइल एसिड एंड एज वेल एज अदर रिमेनिंग न्यूट्रिएंट। इसका मतलब क्या है कि स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम और जेजुनम की जो पार्ट्स हैं, वहाँ से जो चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं वो चली जाती, जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती वो आ जाती हैं और वो फिर इलियम में एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जो विटामिन B12 है वो स्पेसिफिक इलियम में एब्जॉर्ब होगा। वो स्पेसिफिक इलियम में एब्जॉर्ब क्यों होगा, उसके लिए ख़ास फैक्टर चाहिए जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, और उस एब्जॉर्प्शन फैक्टर्स को हम कहेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है, जैसे एंजाइम्स में, बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड होगा एंजाइम की एक्ट के लिए, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे कि वो रिक्वायर्ड होंगे और उसके बाद ये जाके विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं होता। The ileum joins the cecum of the large intestine and at the ileocecal junction। ileum और cecum junction है, वहाँ पे ये junction बनाते हैं और वहाँ पे ये attach होते हैं with the large intestine। This is the rough diagram। The part of jejunum is shown, a sigmoid colon, this is all mesenteries, what is shown here, mesocolon, transverse colon, the greater omentum, that is a part of the stomach as well, that is what's shown। Intestinal villi। Intestinal villi are the finger-like projection of the mucous membrane just visible to the naked eye। ठीक है, मतलब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, ब्रश लाइक या स्पीड ब्रेकर टाइप एक प्रोजेक्शंस होंगी जो कि नेकेड आई से हमें नज़र आते हैं। मीन इतने ज़्यादा ये बारीक नहीं होंगे। इससे जो बारीक होते हैं, जो स्मॉल होंगे, वो है माइक्रोवेलाइज। ठीक है, जो तो वेलाइज फर्दर डिवाइडेड इनटू माइक्रोवेलाई। दे गिव द सरफेस ऑफ इट द इंटेस्टिनल म्यूकोजा अ वेलवेटी अपीयरेंस। वेलवेटी अपीयरेंस को कहेंगे। वेलवेटी अपीयरेंस का मतलब क्या है, जो अप्स एंड डाउन है, तो उस अप्स एंड डाउन लार्ज सरफेस एरिया वो ब्रश लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हेयर ब्रश है, उस तरह का अपीयरेंस देंगे। एंड दे आर लार्ज एंड न्यूमेरियस इन देयर ड्यूडेनम एंड जेजुनम।
but are smaller and fewer in the ileum. ड्यूडेनम और जिजनम में ज़्यादा है जबकि इलियम में कम है. तो इसका मतलब क्या है कि जो ड्यूडेनम और जिजनम में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इलियम. दे आर वेरी इन डेंसिटी फ्रॉम 10 to 40 पर स्क्वेयर मिलीमीटर. पर स्क्वेयर मिलीमीटर ये 10 to 40 इसकी क्वांटिटी होगी एंड आर अबाउट 1 to 2 mm लॉन्ग. ठीक है, इतनी ज़्यादा बिकॉज इसकी वजह से इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है. इंटेस्टाइन अगर कुछ एब्जॉर्ब करते हैं तो वो बेसिकली इस इंटेस्टिनल विलाय की वजह से ही होता है. दिस इज़ जनरल डायग्राम. इट शोज, लुक एट दिस, द सेरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा का इंटरनल लाइनिंग यहाँ पे शो किया गया. दिस इज़ बिल्कुल विलाइज हैं. अब इन विलाइज को अगर आप देखें, देखो फिंगर लाइक या हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे स्पीड ब्रेकर्स हैं, अप डाउन इस तरह. तो इसके अंदर बॉटम साइड पे यहाँ पे जो कि जैसे थोड़ा मैग्नीफाई किया है दी आर्टरीज एंड वेन्स. ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है. लुक दिस, इट इज़ दी ups and down. This is basically kind of hair projections है, finger like projection है hair brush की तरह. ये बेसिकली काम करती है एब्जॉर्प्शन में कि यहाँ से फूड आता है, इसके ऊपर अप एंड डाउन में जाएगा तो वो क्या होगा, लार्ज एरिया होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका इंक्रीज होगा. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से यहाँ पे वो एब्जॉर्ब होंगे. नेक्स्ट इज द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. मीन्स के इंटेस्टाइन में कौन कौन से ग्लैंड होंगे. These are also called crypts of Libercum. Crypts of Libercum कहेंगे intestinal glands को, and these are the simple tubular glands. Tube type, छोटे छोटे glands है, tube type glands होंगे and distributed over the entire mucosa membrane. ठीक है, जो जिजनम है और इलियम है वहाँ पे क्या होगा कि जो उसका म्यूकोजा है, जो अपवर्ड सरफेस है, उसके ऊपर ये क्या होगा, सारा इसकी पाया जाता है. They open by small circular aperture on the surface of mucous membrane between the villi. जो villi के जो पार्ट है उसमें पोर्स होंगे. Aperture means pores, उसमें ये ओपन होते हैं. And they secrete digestive enzyme and the mucus. Blood supply to the small intestine. जो arterial blood है वो blood supply to the small intestine. सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इंटेस्टिनल ब्रांचेस उसकी अराइज होंगी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ आर्टरी दैट रन्स टू द मेजेंट्री टू रीच द गट. जो जीआईटी ट्रैक है वो सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के लेफ्ट साइड से ब्रांचेस आएंगी और वो फुल स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करेगा. दे एनास्टोमोस विद ईच अदर टू फॉर्म अ सीरीज ऑफ आर्केड. एनास्टोमोस का मतलब क्या होता है एनाटॉमी में कि जब आपका 2 या 3 या मोर देन 3-4 जो वेन्स है या चैनल्स हैं या वेसल्स हैं, जो भी चीज़ लेंगे, वो बोन भी हो सकते हैं, वो सारे आपस में आ जाएं और काइंड ऑफ नेटवर्क बनाए, क्लस्टर बनाए. तो उस क्लस्टर को हम कहेंगे एनास्टोमोस. प्रोसेस को हम कहेंगे एनास्टोमोसिस. सो यहाँ पे क्या है कि दे एनास्टोमोस विद ईच अदर टू फॉर्म अ सीरीज ऑफ द आर्केड्स. आर्केड का मतलब क्या है, सीरीज ऑफ द आर्टरीज. तो इसका मतलब क्या है कि सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज से जो ब्रांचेस हैं वो अराइज हो जाएंगी और वो आपस में मिल जाएंगी, एनास्टोमोस हो जाएंगी, और जिसकी वजह से सीरीज ऑफ आर्केड्स बनेंगे. ठीक है. सिमिलरली जो वीनस ब्लड है वो कैसे होगा, बाय मीन्स ऑफ द स्प्लीनिक वेन, सुपेरियर मेजेंटेरिक वेन एंड पोर्टल वेन. ठीक है, इन तीनों वेन के थ्रू ही जो वेन की ड्रेनेज है वो होती है. नर्व सप्लाई कैसी होगी. It is innervated by parasympathetic system and sympathetic nervous system. T6 to T9 से sympathetic nervous system होगा, means thoracic 6 से thoracic 9, और parasympathetic is supplied by the vagus nerve. ठीक है. Arise from the superior mesenteric plexus. Plexus का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे cluster होगा. ठीक है, group cluster of the blood vessels. Small intestine की functions हैं. Peristaltic movement in GIT. पेरिस्टालिक मूवमेंट का मतलब क्या है, रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल म्यूकोजा. जो एब्डोमिनल म्यूकोजा है उसकी जो मूवमेंट है, रिदम इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग मोशन ये होती है
और वो फॉरवर्ड प्रोपेलिंग है, जैसे कश्ती जाती है कि वो पीछे वो पैडलों को कर लेते हैं और आगे जाती है, इसी तरह का मूवमेंट होगा जिसकी वजह से जो फूड कंटेंट है वो नीचे जाते हैं, मींस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम जाते हैं। टॉप टू बॉटम का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि माउथ है, फिर इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इस तरह। सेकेंड इज कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन of carbohydrate, protein and fats in the enterocytes of the villi. Enterocyte mean कि जो स्मॉल में छोटे छोटे सेल्स हैं villi, वहाँ पे इसकी जो केमिकल डाइजेशन है वो कंप्लीट होती है। केमिकल डाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बाय मीन्स ऑफ हार्मोन्स और बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स। ये हार्मोन्स यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। सो दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की यहाँ पे डिग्रेडेशन होती है, डाइजेशन होती है, जो कि कंप्लीट होती है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, जैसे सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन इज हार्मोन, वो सिक्रीट करते हैं, उसका भी काम है सिक्रीशन। सिक्रेटिन का काम बेसिकली क्या है कि वो जो जीआईटी का एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। जीआईटी का एनवायरनमेंट कैसे होगा कि उसका जो इंटेस्टाइन का स्पेसिफिकली कि उसमें जो बाइकार्बोनेट्स है वो ज़्यादा सिक्रीट करेंगे ताकि एसिड की वजह से उसका इफ़ेक्ट ना हो, और अप्रोप्रिएट पीएच प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि अप्रोप्रिएट या ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए। एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रेंट वी हैव डिस्कस कि एलियम और ड्यूडिनम, जेजिनम और ड्यूडियम में होती है और एलियम में भी कुछ पार्ट होती है, जैसे विटामिन B12 है तो इसके एब्जॉर्प्शन में भी पार्ट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स दैट हैव सर्वाइव्ड द एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। हमने पढ़ लिया है कि जो फूड कंटेंट है, जो काइम है, वो आ जाते हैं स्टमक से इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसके साथ क्या होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक कंटेंट भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो बर्नर सेल है उससे बाइकार्बोनेट से क्रिएट हो जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इन कंटेंट में अगर कोई भी माइक्रोब्स हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से सर्वाइव हो जाते हैं, मतलब वो मरते नहीं हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाती हैं, वो बॉडी में गुड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो वो अभी जो इंटरनल बॉडी है उसको सपोर्ट करने के लिए रह जाते हैं। सो दिस हेल्प्स द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन, मीन्स कि जो बाकी बॉडी से जो इन्फेक्शन आएंगे, जो बाकी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसको ये जाके किल करेंगे। बाय सोलिटरी लैम्फ फॉलिकल एंड एग्रीगेटेड लैम्फ फॉलिकल। एग्रीगेटेड का मतलब क्या है, क्लस्टर, एक जगह पे जैसे वो बने होते हैं, तो लैम्फ फॉलिकल और एग्रीगेटेड लैम्फ फॉलिकल में ये क्या होंगे, पाए जाते हैं। दिस इज असाइनमेंट। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, व्हाट इज पेरिस्टालिसिस, व्हाट इज एनास्टोमोसिस एंड व्हाट इज पोर्टल वेन। ठीक है, ये तीनों आप लोगों ने डिफाइन करने हैं। What are different type of intestinal glands and give its individual function। ठीक है, intestinal glands हैं, कौन कौन से हैं और उसको क्या है, क्या फंक्शन दिया गया है, क्या काम करते हैं, वो भी आप लोगों ने लिखना है। कंपेयर द जेजिनम एंड इलियम। जेजिनम और इलियम को कंपेयर करना है, इट्स लोकेशन, इट्स लेंथ, इट्स विड्थ, इट्स फंक्शन, इट्स साइज, सब कुछ। एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब होती है वो भी आप लोगों ने लिखना है। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एनी क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क इन कमेंट्स, वी विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।